So in our last webinar, we discussed about the what is business automation. So business automation, we discussed that business automation nothing. Actually, most people are feared and worried, and when we listen or hear this word business automation, just they think about, I don't know what is this, how we can go with our business. So these kind of questions start just coming in their mind. So how we can avoid this thing? This is, let's understand a business. What is a business automation? In this we explained this whole process in our last webinar, but I want to repeat it in today also. So business automation is nothing but it is some tools and techniques which can be just integrated or which can be just implemented in the existing business process. So for example, all of us are running our own business. So in that case, we can add some more tools and technologies and techniques, right, in our business. So we can automate our business in this way. For example, here in this figure, you can see this is an existing business process. Now we are just imbibing or we are just integrating some tools and techniques in our business process. Then in that case, our business gets motivated. So today, similarly, as we do in the last webinar, we use more Hindi than English so that all people can understand, correlate, and more or less this today also will be more, the interactive session. For example, there are some set of rules with every businesses, and that depends on the nature of businesses. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tools and techniques का arrow जा रहा है existing business की तरफ. What are the tools, technology tools and techniques? Thus, you can see some set of rules, access control, centralized data, okay, by team, and reporting system. What is a reporting system? That is structured data for decision making. And if we integrated all these things with the existing businesses, then our existing business gets automated. Moreover, I would like to add one more thing. Some people call it business automation, and some people call it the process automation, and some people just call it the digital transformation of the business. So don't get afraid. All these things are same, and we can call it by any name. अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर जब हम बिजनेस ये एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हम ऐड कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? देन our business can produce the same output as just like a automated business. यदि आपका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है, इन दैट केस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मेन चीज ये होता है प्रैक्टिकली. एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो दैट वुड बी मोर प्रैक्टिकली देन थ्योरेटिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम सब लोग बुक्स में पढ़ सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं, बट व्हाई वी आर जस्ट कनेक्टेड टुडे, हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकली डिस्कस करें उस चीज को. तो अब मान के चलते हैं कि हम लोगों को अपना बिजनेस ऑटोमेट करना है, तो हम ये समझ गए अभी तक कि ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिफाइन करना है, सेंट्रलाइज्ड डेटा रखना है, और उसको रिपोर्टिंग सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग करना है. अब ये सब कब करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड है या नहीं है? तो सबसे पहले आप देखेंगे राइट टॉप पे यहाँ पे 5 पॉइंट्स मेंशन है. नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. यदि आपका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है, इट मींस दैट किसी भी तरह का आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा. यानी कि जब जिसको मन करेगा, जब आपका जो मन करेगा या आपकी टीम का मन करेगा, वही करने लगेगा, जिस तरह से मन करेगा उस तरह से करेगा, बट दे विल नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इवन दो द फाउंडर्स डजंट फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. यदि ऐसा मिलता है आपके बिजनेस में, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है. नो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम. यदि आपके बिजनेस में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कंट्रोल सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे?
होता क्या है कि मैंने बहुत सारे बिजनेस पे देखा है, इवन एज यू मे नो दिस, आई एम आल्सो वर्किंग एज ए स्टार्टअप कोच विद फ्यू स्टार्टअप्स। तो मुझे मैंने देखता हूँ कि उसमें कोई दो तरह के स्टार्टअप्स होते हैं। आइदर बहुत ओपन होते हैं, दे डोंट हैव एनी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ हर टीम मेंबर्स को सब कुछ एक्सेस दे दिया जाता है। आप ध्यान रखिए, टीम मेंबर जब आप सब कुछ एक्सेस दे देंगे, बट दे आर नॉट दैट मच मेच्योर टू हैंडल योर बिजनेस, व्हाट हैपन, दे मिस यूज नोइंगली और अनोइंगली। नंबर वन। दूसरे तरह के मैंने स्टार्टअप्स देखे हैं जो कि फाउंडर्स अपने पास सारी इंफॉर्मेशन रख के बैठ जाएंगे, टीम को नहीं देंगे। जो भी सोच रहे हैं वो अपने पास ही रखेंगे, और उनका गोल, उनका विजन, उनका मिशन उनके पास तक ही है। ज्यादा से ज्यादा उनके पास से, उनके दिमाग से ज्यादा है तो जाता है तो वेबसाइट में मेंशन कर देंगे, और वेबसाइट में भी वो मेंशन ही रहता है, वो उसका कोई यूज नहीं होता है। वो 4 लाइनें लिखी होती है वेबसाइट में, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जब तक आप अपने पास सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे, यू विल नॉट शेयर your company vision, goal and process and everything to your team, then team will not perform in a efficient way. तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपको डिफाइन करना है। तीसरा नंबर है नो डेटा फॉर एनालिसिस। आप जो भी स्टार्टअप्स हैं, यदि वो ऑटोमेटेड नहीं है, उनके पास कुछ भी डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होता। डेटा होता है, कहीं कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट। अभी मैं अपने क्लाइंट से कभी से बोलता हूँ कि वो कस्टमर लिस्ट कहाँ है, सर वो उस कंप्यूटर में पड़ी होगी। लीड, आज की लीड लिस्ट कहाँ है, सर वो आज वो टीम मेंबर आया नहीं था तो वो उसी के पास है, राइट, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम तो उसने मेल ही नहीं किया। तो इस तरह की समस्या आती है। तो कोई भी डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सो दैट कि हम अपनी एनालिसिस कर सकें। तो एक ये तीसरा सिम्टम्स ये है। फोर्थ सिम्टम्स ये है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वहां पे बेस्ड ऑन गेस्टिमेशन होते हैं रादर देन एस्टिमेटेड। तो उसमें क्या है कि जब हमारे पास डेटा ही नहीं होता तो एस्टिमेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम लोग सारे डिसीजन गेस्टिमेशन से लेते हैं, बेस्ड ऑन आवर इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन आवर सिचुएशंस, उस डिसीजन को लेते रहते हैं, और वो उनका कनेक्शन कहीं से नहीं होता है, ना तो हमारे पिछले अचीवमेंट से, ना हमारे पिछली पिछली लर्निंग से, और ना हमारे टीम के एक्सपीरियंस से। तो कहीं पर भी कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता, और फाउंडर्स डिसीजन लेते रहते हैं और वो हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं। पांचवा जो सिम्टम्स है वो क्या होगा कि आपका, आज आप भले ही बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, बट व्हाट विल हैपन ग्रेजुअली, यदि आप ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, और आप में आपके कंप्यूटर में से किसी ने भी यदि ऑटोमेटेड सिस्टम कर लिया, तो यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी वो भले ही आज आपसे पीछे हो, लेकिन बहुत आगे वो आपके स्टैंड करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो उसके साथ कैसा हो गया, और आपके कस्टमर आधे उसके होंगे। तो कॉम्पिटिटर इज फुली इक्विप्ड, आप ये मानकर चलिए कि कंप्यूटर फुली इक्विप्ड है। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स आपके बिजनेस में आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बिजनेस एक बिजनेस ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, और आप बिजनेस ऑटोमेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कंसल्टेंट को हायर करें, कोई एडवाइजर को हायर करें, कोई कोच को हायर करें। इफ यू आर कैपेबल यू कैन डू ऑन योर ओन। यदि कैपेबल नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर हायर करिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है।